Supposing you are a working son or daughter in your home and you're not yet married. और मान लीजिए कि आप जो है घर में कामकाज करने वाले पुत्र या पुत्री हो और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, And your father is poor and he's living with you. और आपके पिताजी गरीब हैं, वो आपके साथ रहते हैं, Won't you take care of his needs? क्या आप उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे? Not out of any law, कानून के अंतर्गत नहीं, out of gratitude. आभारीपन से देंगे। If your parents are poor, अगर जो आपके माता you पिता will गरीब हैं, give them out of gratitude. तो हम आभारी होने के कारण उनके प्रति आभारी And प्रकट करने के लिए Even देंगे। if your parents are rich, हाँ, अगर आपके माता पिता अमीर होंगे तो भी you may still take them a gift out of gratitude. फिर भी आप उनको तोहफा देना चाहेंगे आभारीपन से। So God is not poor, he's not a beggar. परमेश्वर जो है गरीब नहीं, वो भिखारी नहीं, He is the biggest, richest person in the universe. और वो पूरे विश्व में सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। You know, all these people who preach that God's work is suffering, please support God's work. जो लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर के जो सेवकाई है उसमें दो, They are picturing God like a beggar. और वो इस तरीके से तस्वीर दिखाते हैं जैसे कि परमेश्वर कोई भिखारी They है, fool believers to go and give money to them. और वो लोगों को बेवकूफ करते हैं कि वो परमेश्वर को देने And के लिए। almost every church और proclaims हर like कलीसिया that. Proclaims like that. और ऐसे ही बोलते हैं, We need money, give money, give money, give money. हमें पैसे की जरूरत है, पैसे दो, पैसे दो। You know who never said that? Who is the one who never said that? क्या आप जानते हैं कि किसने ऐसा नहीं कहा है कभी? Jesus कि भी यीशु मसीह ने and the apostles. और उसके चेलों ने। You never read in the gospel anywhere in the New Testament they're saying give me money, give me money. और सुसमाचार में कहीं पे भी आप नहीं पढ़ोगे कि दो दो करके लिखा है। Jesus said give money to the poor. प्रभु यीशु मसीह ने कहा गरीबों को पैसे दो, That he said many times. और वो उसने कई बार कहा है। Paul wrote to the Corinthians, give money to the poor believers in Jerusalem. और पौलुस ने कुरिन्थियों को भी कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको पैसे दो। But never do you read in the New Testament, give me money, I am serving the Lord. और कहीं पे भी नए नियम में ये नहीं लिखा कि मुझे पैसे दो क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवकाई करता Or give हूँ, money to these preachers. या फलाने प्रचारक को पैसे दो। Not even once. एक बार भी नहीं। Then we can ask, तो हम पूछ सकते then हैं, how are these preachers supposed to live? तो ये प्रचारक किस प्रकार से जीवन जिएंगे? Aren't these preachers like the Levites in the Old Testament? क्या ये लेवी गोत्र के समान नहीं है ये प्रचारक लोग? No. नहीं, Because one of the greatest preachers, the Apostle Paul, worked with his own hands. क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रचारक था पौलुस, उसने खुद अपने हाथों से काम किया, The Levites were not allowed to work. और लेवी लोगों को अनुमति नहीं था काम करने का, Paul worked. लेकिन पौलुस ने काम किया। And many servants of the Lord through these 20 centuries have worked and served the Lord. और इस 20वीं शताब्दी में भी बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग कार्य करके वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। That's how I have served the Lord for the last more than 40 years that we've had CFC. और 40 साल से पहले से ही जो है हम लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं CFC में। Not only me, all the other elders. ना केवल मैं, और भी बुजुर्ग लोग, We followed Paul's example. और हम पौलुस का उदाहरण देते हैं। So it's very important in this area of money that we have a good testimony. और इसलिए पैसे के जो मामले में हमारा अच्छा गवाही होना चाहिए। But we read that some people gave money to Jesus. और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पैसे दिया। How did Jesus support himself? प्रभु यीशु मसीह कैसे अपनी मदद खुद करते थे? Luke 8 verse 2 and 3. लूक 8 उसका दूसरा, Verse 3. लूका रचित सुसमाचार 8 उसका तीसरा। Joanna, the wife of Cusa, Herod steward, and Susanna, and many others were contributing to the support of Jesus and his disciples from their private means. Luke 8 verse 3. यहाँ लिखा है, और हेरोदस के भंडारी खोजा की पत्नी योआन और सुसाना और बहुत सी स्त्रियां ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। He never asked them. उन्होंने कभी मांगा नहीं। If they voluntarily gave, he took it. हाँ, अगर जो उन्होंने दिया अपने मन से तो उन्होंने लिया। The same way Paul says in Philippians वैसे ही पौलुस जो है फिलिपियंस में कहता है, and chapter 4 और 4 अध्याय में and verse 10. 4 उसके 10 में, I rejoiced in the Lord greatly that you have revived your concern for me. मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ। Not because I want anything, verse 11, because I've learned to be content in whatever I have.
और 11 में लिखा है कि यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीख लिया कि जिस दशा में हूं उसी से संतुष्ट करूं। It is in this context of money that he says in verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. और इसीलिए वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। I'm not dependent on your supporting me. Even if you don't support me, the Lord will strengthen me. और मैं तुम्हारे जो सहायता है उस पर निर्भर नहीं हूं, परमेश्वर मेरी मदद करता है। But you have done well to help me in my need. लेकिन तुमने अच्छा किया, मेरी जरूरत के समय तुमने मेरी मदद किया। And now, और अब verse 17, 17 में देखते हैं, I do not seek the gift, but the profit which will increase to your account. यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। He says, I don't need anything. मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, But when you give me something, I think of the blessing that will come to you. लेकिन जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो उसके फल स्वरूप तुम्हारे जीवन में भी कुछ लाभ होना Paul चाहिए। never made his need known to anyone. पौलुस ने अपनी जरूरत को कभी भी किसी के सामने नहीं कहा। Do you know sometimes Paul was hungry क्या आप जानते हैं कई बार पौलुस भूखा रहा and sometimes he was shivering in the cold, और ठंड के मारे वो कांपा, but he never told anybody his need. लेकिन उसने अपनी जरूरत किसी को नहीं बताया। That is the testimony we have maintained in all of our churches. और हमारी कलीसिया में भी हमने यही गवाही बना के It's रखा a है। very important testimony और ये बहुत ही प्रमुख because बात there है, are two masters, God and money. क्योंकि दो स्वामी हैं, एक है परमेश्वर और दूसरा है पैसा। We never want to become a slave of money. और हम नहीं चाहते हम पैसे का गुलाम बने, We don't want to push people to give money. और हम लोगों को दबाव नहीं डालना चाहते पैसे के लिए। If you come to our CFC Bangalore, अगर जो आप बैंगलोर CFC में आते हैं, on top of the offering box, we have 5 conditions written there. और ऑफरिंग बॉक्स के ऊपर 5 शर्तें रखे हैं, Before you put money in this box, और इस बॉक्स में पैसा डालने से पहले check these things. और इस बात पर ध्यान दे। Number 1, पहला, are you born again? क्या आपने उद्धार पाया है? A person who is not born again cannot give money अगर for जो God's आपने work. उद्धार नहीं पाया है तो इसमें बक्से में पैसे नहीं डाल सकते। See this verse in the 3rd epistle of John. और तीसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री में हम देखते You know, हैं, John wrote 3 letters. क्योंकि यूहन्ना ने 3 पत्री लिखी है This is the 3rd letter. और ये तीसरी पत्री है, There's only 1 chapter there. केवल एक ही अध्याय है। And it says here, the people who went out preaching in the name of Jesus, verse 7, took nothing from the non-Christians. और वहां पे लिखे हैं कि वो जो लोग प्रचार करने के लिए गए थे उन्होंने अन्य जातियों से कुछ नहीं लिया। That means if a non-Christian gave them some money, they say, no thank you, we don't want it. अगर जो अन्य जाति कुछ भी देता है तो वो लोग धन्यवाद हमें नहीं चाहिए करके बोल Because देते। it's a great privilege to support God's work, but only His children have that privilege. और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर की सेवा करना, लेकिन ये सौभाग्य केवल उसी के बच्चों के पास है। So the first condition there is, are you a child of God? तो पहला शर्त यह है कि क्या आप परमेश्वर के संतान हो, Are you born again? क्या आपने उद्धार पाया है? If not, put your money back into your pocket. Don't put it here. नहीं तो आप अपने पैसे को वापस अपने जेब में रखें। Second, और दूसरा शर्त, are you in debt to somebody? क्या आप किसी के कर्जदार हो? Jesus said, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. परमेश्वर ने कहा कि जो सीजर का है वो सीजर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। That means if you owe some tax to Caesar, go and pay Caesar. Don't put it in the offering box. अगर जो कुछ कर है जो कि सीजर को देना है तो परमेश्वर के उस ऑफरिंग बॉक्स में ना डाले बल्कि उनको सीजर को Or दे। if you borrowed money from that person अगर जो किसी व्यक्ति से आपने पैसे लिए हो and you put money in the box, और वो पैसे आप बॉक्स में आके डालते it's हैं, not your money. That is that person's money. वो आपका पैसा नहीं, वो उस फलाने व्यक्ति का है। That person can say, God, how can he give you my money? He should return my debt. हाँ, तो वो बोलेगा कि अरे परमेश्वर ये मेरे पैसे कैसे आपको दे सकता है, उसने कर्ज नहीं चुकाया। God doesn't want Caesar's money or anybody else's money. परमेश्वर को जो है सीजर के पैसे नहीं चाहिए या किसी और के पैसा नहीं चाहिए। If you are in debt, अगर जो आप कर्जदार हैं don't put money in the offering box. तो आप ऑफरिंग के बॉक्स में पैसे ना डालें, Give it to that person. तो उस व्यक्ति को पहले दे। I want to clarify something. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, To take a loan for a house is not a debt. अगर जो घर के लिए कोई कर्ज लेता है, लोन लेता है, You take loan from a bank to build a house. और घर बनाने के लिए आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक से, Why is it not a debt? वो कर्ज क्यों नहीं है? See, if you take a weighing balance, अगर जो आप तराजू लेते हैं, one side is a house, एक तरफ घर है the other is the bank loan, और दूसरी तरफ कर्ज है, equal.
हाँ, तो ऋण और जो घर है वो दो or बराबर हो जाते take हैं। a loan to buy a car. या फिर कार खरीदने के लिए कर्ज लेते There's हैं, no debt. तो वहां पे ऋण नहीं है, कर्ज नहीं है। If you die, the bank will take the house. There's no debt. क्योंकि अगर जो आप मर जाते हैं तो बैंक कार ले जाएंगे और आपका कर्ज मुक्त हो So जाएंगे, that is no debt. तो वो कर्ज But नहीं है। if you borrow money from people for some other thing, लेकिन अगर जो आप लोगों से पैसे कर्ज में लेते हैं किसी और काम के लिए, you're in debt to that person. तो आप उनके कर्जदार हैं। So people ask me, should I give that person or should I give to God? तो लोग पूछते हैं कि मैं उनको दूं या फिर परमेश्वर को दूं। But if you give to God, you're giving that person's money. अगर जो आप परमेश्वर को देते हैं तो आप किसी और व्यक्ति का पैसा उठाकर दे रहे हैं, God doesn't want other people's money. और परमेश्वर को दूसरे लोगों की पैसे की जरूरत नहीं। But people say, but I also owe God money. वो बोलते हैं कि मेरे को तो परमेश्वर को भी देना है। No, no, no. God, you don't owe God any money. आप जो है परमेश्वर के लिए नहीं रखते कोई भी पैसा। If you give to God, you must give joyfully, अगर जो आप परमेश्वर को कुछ देते हैं तो पूरे खुशी के साथ देना है, not like a debt. एक कर्जदार होकर नहीं। So that's the second thing. If और you're वो in debt, दूसरी बात है। don't give to अगर God. जो कर्जदार हैं तो मत दे। The third thing, Jesus said, if when you come with your offering, you remember somebody has got something against you, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो तुम कुछ भेंट लेकर आते हो और याद आता है कि किसी के जीवन में तुमने कुछ बुरा किया है and he got something against you because you hurt him, और उसके मन में आपके विरोध में कुछ बातें हैं because you hurt him, क्योंकि आपने जो है उसको चोट पहुंचाया है, don't put the offering there. तो बोलते हैं कि भेंट मत दो, Go to him, पहले उसके पास जाओ, settle it, उसको पहले बराबर करो, then come and put your offering. फिर आकर So भेंट that's चढ़ाओ। the third condition. और ये है तीसरी शर्त। Has somebody got something against you because you did some harm to him? किसी के विरोध में आपने कुछ उनको चोट पहुंचाया है Don't put your money here. तो अपना पैसा यहाँ ना डालें, Settle it with him. पहले जाके उससे बात करें। And number 4, फिर चौथी बात, see there's a verse in 1 Timothy 5:8 पहले तिमोथी 5 उसके 8 में लिखा हुआ है, that if you don't take care of your family, you're worse than an unbeliever. हाँ, अगर जो तुम अपने परिवार का देखभाल नहीं करते हैं तो हम अन्य जातियों से बुरे हो। So if your children are in need, अगर जो आपके बच्चे कुछ जरूरत में हैं, they don't have enough food, उनके पास खाने के लिए भोजन or they नहीं, don't have proper clothes, अच्छा वस्त्र नहीं, or you don't have money to educate them, और उनको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं, take care of them. तो उनकी देखभाल करें। I'm not talking about buying a car for each of them. I'm not talking about मैं things ये like नहीं बोल रहा कि उनके लिए कार खरीदो, that. I'm saying if they have need of food, clothing or education, मैं बताना चाहता हूँ उनको भोजन की जरूरत हो, वस्त्र की जरूरत हो या फिर पढ़ाई लिखाई की, don't put money in the box. Take care of your children. तो पहले अपने बच्चों की देखभाल करें, उसमें पैसे ना डालें। Don't let your children grow up and say, we could never get proper education because daddy gave his money to God. तो बच्चे बढ़कर ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे पिता ने दे दिया, We had to wear torn clothes because daddy gave his money to God. और मुझे फटा हुआ कपड़ा पहनना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर के लिए दे दिया मेरे पिताजी ने। Your children will turn against God. तो आपके बच्चे जो है वो परमेश्वर के विरोधी हो जाएंगे। We write there, take care of your children. पहले अपने बच्चों की देखभाल करें। And number 5, और पांचवी and बात, one thing I want to say, take care of your children doesn't mean you pay a dowry for your daughter. That is not a need. अपने बच्चों की देखभाल की बात ये नहीं कि अपनी बेटी के लिए जो है तुम दहेज दो। No. God is 100% against dowry. तो दहेज के विरोधी है हमारा परमेश्वर। You're disobeying God when you give dowry. जब आप दहेज देते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते। Let me clarify. मैं आप बताना चाहता हूँ, It's right to give your daughter an equal inheritance with your sons. और ये सही है कि आप अपने पुत्रों के साथ पुत्रियों को भी बराबर का हिस्सा दो, That is okay. वो ठीक है। When you die or whenever you write a will, that's okay. हाँ, आपकी मृत्यु होने के बाद आप जो है इच्छा देते हैं और उनको भी देते हैं हिस्सा, But not to buy a husband. लेकिन पतियों को खरीदे नहीं, Don't buy a husband with dowry. और पैसे देकर पतियों को ना खरीदे, That's not going to be a very happy marriage. तो वो खुशदायक जो है परिवार नहीं होगा। Fifth condition is, और पांचवा शर्त, don't do business with God. परमेश्वर के साथ व्यवसाय ना करें, Don't give thinking that you will get a reward from God. और ऐसा सोचकर ना दे कि परमेश्वर आपको कुछ और तोहफा देगा, Give saying, Lord, I don't want anything back. This is for you. और बोले कि परमेश्वर मुझे कुछ भी वापस नहीं चाहिए, ये आपके So, लिए है। these are the 5 conditions. और ये 5 शर्तें हैं। So, some people come and they see all that and they don't put anything and go away. और कई लोग उसको आके पढ़ते हैं, फिर कुछ नहीं देते और वापस ले जाते हैं। See, these are like filters. 1, 2, 3, 4, 5 filters.
और ये 5 तरह के फिल्टर्स हैं। So somebody asked me once, और किसी ने मुझसे पूछा Brother Zach, with all these filters, does anybody put anything in the box at all? Do you get any money? कि भाई जैक ये 5 शर्तें पढ़ने के बाद क्या कोई उसमें डालता है क्या? I said, we have followed this principle for 41 years. और 41 साल से ये सिद्धांत पर हम टिके हुए And हैं। if you go to our website, अगर जो आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे, you'll see this our financial policy. हमारी आर्थिक जो पॉलिसियां हैं वो आप That देख सकते हैं। everyone in the world also can read it. और पूरे वर्ल्ड के संसार के लोग भी पढ़ That सकते we हैं। are not looking for money from anywhere in the world. हम पूरे संसार में किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है पैसे Never पर। send a report of our work और हम anywhere. अपने कार्यों के लिए कोई रिपोर्ट नहीं भेजते। You know, for many years now, we have sent out a weekly message called Word for the Week. और पूरे हफ्ते का जो कार्य होता है उसका जो संदेश है हमने कई महीनों से नहीं भेजा। No, we have sent a message from हमने the Word of संदेश God, भेजा। from the Word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार for many years. कई सालों And से। there are thousands of people around the world who get it. और बहुत सारे सैकड़ों लोगों को वो संदेश मिलता है। We never send a report to all of them of what we are doing. लेकिन हम क्या काम करते हैं उसके बारे में हम रिपोर्ट नहीं देते। Because Jesus never gave a report to people of what he was doing. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद वो क्या करता है करके रिपोर्ट किसी को नहीं दिया। The apostles never sent reports to all the churches what they were doing. और प्रेरितों ने भी कभी वो क्या काम करते हैं उसके बारे में रिपोर्ट नहीं भेजा। Among the apostles and elders, they shared among themselves what. और प्रेरितों ने आपस में और बुजुर्गों ने आपस में इस बात को बांटा था कि we वो क्या share करते हैं। we share among the elders what the Lord is doing. और हम अपने बुजुर्गों के बीच में बांटते हैं कि परमेश्वर क्या कर But रहा we है। don't advertise it because advertising makes like asking people for money. और लेकिन हम एडवर्टाइज नहीं करते क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि हम पैसे मांग रहे लोगों So से। we are a unique church like that. हम बिल्कुल एक अलग चर्च हैं। 41 years in all our nearly 75 churches, we have never taken an offering in और any church. 40 साल से जो है 75 कलीसिया में कहीं पे भी हमने भेंट नहीं लिया। None of our elders get any payment. और हमारे बुजुर्गों को किसी को भी पेमेंट भी नहीं दिया And जाता। God has met all our needs. और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता When है। we put up a building, we don't go to a bank for money. और जब हम कोई इमारत खड़ी करते हैं तो हम बैंक में ऋण के लिए नहीं Because जाते। in many of our village churches, we have to put up a building because all those Hindus and all will not give us their houses to have a church meeting. और कई बार गांव में हमें खुद का बिल्डिंग बनाना पड़ता है क्योंकि हिंदू लोग जो है हमें अपना घर नहीं देते हैं। So we have to put up a building. तो हमें वहाँ पे But बिल्डिंग बनाना we never पड़ता है। ask people for money. लेकिन हम लोगों से नहीं मांगते। Where we get, we build. If we don't have, we don't build. जहाँ पे हमें मिलता है वहाँ पे हम बना लेते हैं, नहीं So, मिलता है नहीं बनाते हैं। I'm saying we need to know these principles that if we want to build a New Testament church, we depend only upon God. और ये नई वाचा का एक कलीसिया बनाना है तो हमें उस पर परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ेगा। We're not proud of it. और इसके लिए हम गर्व नहीं महसूस करते। God is a good God. That is what we are trying to proclaim. और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है।